सब गए है ना, तो वहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने? क्या क्या होता है दुर्गा पूजा पंडाल में? जनरली वहाँ पर अच्छा वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेशन, कंपटीशन चलता है सब पंडाल के इसके बीच में अलग अलग, और बहुत भीड़ रहता है, और प्लस फिल्मी गाने भी बजते हैं। तो क्या वो डिवोशनल स्पिरिट, वो भाव आता है? फिल्मी गाने सुन के भाव चला जाएगा, समझ रहे हैं ना? और सब कुछ चलता है वहाँ पर, इवन नॉन वेज इज बिंग सोल्ड ओवर देयर, everything is sold. People are smoking. Some people after they go on the way they drink also. है ना? So externally festival is being celebrated. The whole Kolkata doesn't sleep at night. Those 5 days of Durga Puja, if you have seen, even the metro schedule changes. मेट्रो सुबह 10 बजे बंद हो जाता है, राइट? 4 बजे सुबह 2 बजे खुलता है। हाँ, शाम दोपहर को 2 बजे से नेक्स्ट दिन सुबह के 5 बजे मेट्रो चलता है, और फिर मॉर्निंग 7 और दोपहर के 2 बजे तक मेट्रो बंद रहता है। द होल कोलकाता इज अवेक एट नाइट, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस। एक्सटर्नली बहुत अच्छा है, पर इंटरनली क्या है वो बहुत ज़रूरी है जानना। इन इस्कॉन ऑल्सो वी हैव, व्हेन जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी, बलराम जयंती इज कमिंग नाउ, so at that time we also decorate everything, temple pandal very nicely, but internally क्या होता है, that is the main difference. So whenever any festival is coming, right, before the festival comes we hear about the festival, we develop our consciousness, हमारी चेतना उसके लिए हम डेवलप करते हैं। जिस समझिए अभी बलराम जयंती आ रही है, राइट, so we hear about Lord Balram to every till the festival comes, now next 5 days, आज झूलन यात्रा है, after 5 days now Balram Jayanti will come. So when we hear about the festivals, no, we develop attachment to the festival. समझ रहे? Then when we celebrate the festival, we celebrate with full potency, with full devotion. Otherwise, festival is nothing but बाहर के externally अगर देखेंगे तो just a get together, कुछ फायदा हुआ? इतना पैसा खर्चा किया, इतना पंडाल बनाया, डेकोरेशन किया, मेहनत का पैसा है ना, क्या मिला करके बताओ? कुछ नहीं. So when we internalize our consciousness, okay, then when we celebrate the festival, then we gain something in our heart, okay, that is very important. तो हम सब लोग के मन में कुछ डिज़ायर्स है ना? किसी को पैसों का बल चाहिए, किसी को फेम चाहिए, है ना? किसी को नॉलेज का बल चाहिए. एवरीबडी वांट सम और अदर स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ होना चाहिए. पर मेन बल क्या है? मेन बल है आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल बल, समझ रहे? तो बहुत सारी बल अगर हमारे पास होंगी भी, फिर भी मौत के बाद क्या होगा? क्या हम ले जा पाएंगे ऑल दो स्ट्रेंथ विद अस? आर्नोल्ड को पता है, द ग्रेट बॉडी बिल्डर, नाउ क्या हो गया उसको? he has to take injections to act in the film. Such a great strength he had at the time, at a particular youth when he was there. Terminator and all became very hit movies. But then, now, to act in a film you have to take injections, and after the effect of injection is gone, his body is just like shaking, pura weak. Strength is not there. देखिए, I'll tell you an example. तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का आपको एग्जांपल बोलता हूँ मैं. You all know Yuvraj Singh, right? The great cricketer. So when India was in the World Cup series, so he was the man of the tournament, right? If I'm not wrong. So he played very nicely. Everything was very nice, and Yuvraj and Dhoni ka partnership, and everybody was liking him, है ना? But then he got a cancer. You all might know this thing, right? That was a harmless cancer, not a harmful cancer, no? Yes? I don't know exactly, but he recovered from it. Something like that news was coming, as far as I recollected. So he was able to overcome the disease. But then once he overcome and came back from that stage, क्या उसका फॉर्म सेम था जो पहले था? He was having the power of cricket, he was having the talent, he was having the skills. धोनी के पहले इंडियन टीम में आ गया, है ना? एवरीथिंग वॉज देयर. बट वो एक जस्ट बीमारी और कुछ महीनों का या कुछ टाइम का एब्सेंस,
बिकॉज ऑफ द डिजीज, उसके फॉर्म को पूरा डाउन कर दिया. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ जो बल होता है ना, मेटेरियल बल, आपका खेल का बल, आपका स्किल का बल, आपका टैलेंट का बल, आपका पैसे का बल, ये सब बल फेल हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. बट स्पिरिचुअल बल, आध्यात्मिक बल जो है वो कोई फेल नहीं होगा. यू ऑल माइट हैव सीन जयपताका स्वामी, राइट? And I was recently reading his biography, Milwaukee to Mayapur. It is here in the library. Literally, I had tears in my eyes. When he was in Spain, a person came and he just like slit his throat. And 1 mm के इंच से यहाँ पर एक आर्टरी होती है, अगर वो आर्टरी कट हो गई, then a person is dead. ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा. Just 1 mm, उन्होंने हाथ यहाँ पर डाला and it just came and it cut his hand. Why? Because he was preaching the message of Bhagavad Gita throughout the world. So the Christians and the people who are there, some fanatic people, they got jealous. How come this knowledge is हमारा ये नहीं हो रहा है? How come he is doing so much? His schedule was very tight. Just like how Yuvraj was in the form, he used to morning Bhagavatam class he used to give in Spain. Then afternoon lunchtime he will go fly to London. There he will give a class. Night time again he will come to France, and there he will have his session and he will sleep at late night. Again get up early Mangala Aarti. So was his schedule. Traveling whole around the world, vigorously preaching, distributing prasadam to everybody. But then when this thing happened, then he was in hospital. But when he came back, he was again the same person. Then after 20 years, he got hepatitis C. बीमारी हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिवर किडनी फेल, लिवर किडनी चेंज करना पड़ा. ही वॉज स्टिल इन ए व्हील चेयर. इफ यू हैव सीन हिम, मे बी ही इज ऑन ए व्हील चेयर. सम ऑफ यू हैव सीन हिम, राइट? बट स्टिल स्पिरिचुअल बल, समझ रहे हैं? आध्यात्मिक बल जो है वो इंसान पूरा ऑलमोस्ट हैंडीकैप है, खुद से उठ बैठ भी नहीं सकता, फिर भी इज एंथुजियास्टिक एंड इज मेकिंग अदर्स हैप्पी. समझ रहे हैं? एट द सेम वे Yuvraj is a good person, I know that, but spiritual strength is not there. कुछ भी हो गया, अगर बॉडी खराब हो गया या कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, फैमिली में कुछ होगा, डाइवोर्स हो गया, एनीथिंग हैपन, टोटली ब्रेक डाउन. आपका फॉर्म फिर से सेम नहीं रहेगा, जिंदगी फिर से सेम नहीं रहेगी. समझ रहे हैं? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल बल. सेम विद श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल. 70 साल का बूढ़ा आदमी कैसे पूरा दुनिया को चेंज किया? स्पिरिचुअल बल, आध्यात्मिक बल, है ना? तो क्या ये बल हमारे लाइफ में ज़रूरी है? तो आध्यात्मिक बल का डेफिनेशन क्या है, जानना चाहेंगे? और द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, प्रभुपाद बोलते हैं इट्स प्यूरिटी इज द फोर्स. क्या है? प्यूरिटी इज द फोर्स. देखो, प्यूरिटी इज द फोर्स का मीनिंग क्या है कि we all have come in the association of so many people after coming to material world, and we have all got inputs from this and that. कुछ इसने कुछ बोला, उसने, हम लोग ने गाली देना सीखा. कोई कभी गाली देना सीखा था? बचपन में किसी को गाली आती थी? बट देन संग में आके वी लर्न द बैड वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स, हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़. पहले वही सीख लेते हैं, है ना? कोई भी भाषा पहले सीखें तो पहले उसका रॉन्ग वर्ड सीख लेंगे. यस, देन वी लर्न मैनी अदर रॉन्ग थिंग्स. किसके वजह से? एसोसिएशन के वजह से. दैट्स व्हाई यू गॉट इम्प्योर. इम्प्योरिटी आ गई अभी हमारे अंदर, है ना? तो प्रभुपाद बोलते प्योरिटी इज द फोर्स. सो अनलेस यू प्योरीफाई योरसेल्फ, यू कांट गेट द स्पिरिचुअल बल. आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ व्हाट यू से, डिटर्जेंट एंड वॉशिंग क्लोथ्स. याद है? आई थिंक सम ऑफ यू, नीतीश, आशीष एंड यू ऑल माइट नो दिस थिंग, राइट? अगर समझे मेरे कुर्ता पे ग्रीस का दाग लग गया, क्या वो डिटर्जेंट से जाएगा? नॉर्मल डिटर्जेंट से? आई हैव टू यूज सम वेरी पावरफुल एजेंट, राइट, टू रिमूव दैट थिंग. अभी देखिए, बस एक दाग को निकालने के लिए इतना मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, तो हमारे माइंड में कितना इम्प्योरिटीज है, उसे कैसे प्योरीफाई करेंगे? करना है कि नहीं प्योरीफाई? सो फॉर दैट द स्पिरिचुअल training is required, the bal is required, okay, and that is what you are getting over here. You come every week over here, आप भगवान को प्रणाम करते हैं, you worship God, you dance in front of God, प्रसाद लेते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं,
दिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। धीरे धीरे आप लोग प्यूरिफाई हो रहे हैं, आपका माइंड जो है ये गंदगी से निकाल रहे हैं। तो हमारी जो कंडीशनिंग है ना, इसको निकालना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अभी आप लोग में से बहुत लोग 1 साल से आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, रीडिंग गीता पढ़ते हैं, आप लोग क्लास सुनते हैं, इस सब आप लोग 1 साल से कर रहे हैं। पर फिर भी जब मौका आता है सेल्फ सर्टिफिकेशन का, तब क्या ये सब चीज़ों को बचा पाती है? बस एक मौके की तलाश रहती है ना। वो मौका आ गया, बस इतना सब करने के बाद भी फुली फ्लैट। क्यों? क्यों? एक चांस मिलती है टू अगेन द सेम थिंग। व्हाई? बैड थिंग्स के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। हमारा जो स्वभाव है, पुराना स्वभाव, वो आ जाता है। You know, I told you an example of a rat and you know, I think I told both of you one day. There was a small rat, female rat. Okay, so that rat. How many of you know this thing? The example I've heard. Anybody? आपको only okay. You know this thing. You know. There was a small female rat. She did. I'm not able to exactly recall it. She did some nice service to a saintly person. एक साधु का अच्छा सेवा किया था, you know. And the sadhu got very pleased with the rat and उनको एक ह्यूमन बॉडी दिया, एक गर्ल का बॉडी दिया, यंग गर्ल। तो अभी वो यंग गर्ल हो गई, सो अभी यंग गर्ल मीन्स शी हैज़ टू मैरी दैट गर्ल ऑल्सो, है ना, उसको शादी कराना पड़ेगा। और तो उनके पिता के जैसे हो गए, तो अभी शादी कराने के लिए वो जो है वो गए विंड के पास, हवा के देवता कौन है? हाँ, उनके पास गए। तो उनको प्रपोज किया कि देखिए मेरी बेटी है, वेरी यंग गर्ल, एंड यू बोथ कैन स्पीक एंड इफ इट्स ओके देन यू बोथ कैन मैरी। तो उनका बातचीत हुआ। फिर बाद में वो लड़की आके साधु जी को, अपने पिताजी को कंप्लेन करती है कि हवा जो है ना बहुत चंचल है, कभी न्यूजीलैंड में, कभी इंडिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में घूमते रहता है। मुझे इतना घूमने वाला हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे शांत हस्बैंड चाहिए। ठीक है, फिर उनसे माफ़ी मांगे। फिर हवा से बोले कि अनुराग, हवा से बोले कि ठीक है, आपको और कुछ पता है? बोला हाँ, मेरा एक दोस्त है, जब भी मैं उसके पास जाता हूँ ना, मैं रुक जाता हूँ पूरी तरीके से। ये कौन है वो दोस्त? वो है पर्वत। तो ठीक है, पर्वत के पास ले गए। तो पर्वत के पास ले गए, पर्वत से मुलाकात किया, फिर वो दोनों ने बातचीत किया, लड़की ने और पर्वत ने। फिर देखा कि फिर से कंप्लेंट करने को आई, ये पर्वत तो ये तो बहुत ज़्यादा ही शांत है, इतना भी शांत हस्बैंड नहीं चाहिए, कुछ करता ही नहीं है, ऐसे एक जगह में खड़ा रहता है दिन रात। फिर अभी क्या करेंगे? फिर पर्वत से सजेशन मांगा, आपको और कोई वर पता है? बोला हाँ, एक जन है जो मेरे अंदर भी होल करके रहता है, चूहा। ठीक है, फिर चूहा से मिलाया उस लड़की को, और जब चूहा से मिलाया तो उसको चूहा की एक्टिविटीज को अच्छा लगा, वेरी नाइस एक्टिविटीज रैट इज डूइंग, इज गोइंग हियर एंड देयर, बहुत अच्छा लगा। तो उसने बोला मुझे चूहे से शादी करना है। और वो जो साधु महात्मा सिर पे हाथ मार के इसको चूहा से एक ह्यूमन फॉर्म दिया, पर फिर भी चूहा के पास फिर से गई। तो इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को, बताइए? पुराना नेचर। हाँ, क्या हमारा जो स्वभाव है, वो स्वभाव इज कमिंग बैक, है ना। अभी समझिए, हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि नॉनवेज खाना गलत है, वी डोंट वांट टू किल इनोसेंट एनिमल्स एनी, बट वी वर ईटिंग नॉनवेज बिफोर। अभी रास्ते से जा रहे हैं कॉलेज की तरफ, तो चिकन चाउमीन का अच्छा स्मेल आ रहा है ना में, हाँ, वो स्वभाव एक्टिवेट हो गया माइंड में, खाने का इच्छा आ गया, है ना। एक्सपीरियंस किया है ना। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल एंड मेनी अदर थिंग्स वुड बी देयर। सब लोग को अलग अलग स्वभाव है, ओल्ड स्वभाव, तो एक्टिवेट हो गया। सो दिस थिंग नो, इट रिक्वायर्स अ पुश, एक कांस्टेंट पुश की ज़रूरत है, जिसके द्वारा वी कैन क्लेंज अवर कॉन्शियसनेस। अदरवाइज व्हाट विल से कि ये तो मेरा स्वभाव जो है, दिस माय साइकोफिजिकल नेचर, मैं चेंज नहीं कर सकता प्रभु, मैं इतना झेल नहीं पाऊंगा, सुबह सुबह आके जप करना इतना मेरे से नहीं होगा, एवरीडे मंगल आरती नहीं प्रभु, बहुत डिफ़िकल्ट है,
क्लास लंबा लंबा क्लास, बाप रे, मेरा तो हालत ख़राब हो जाता है, माथा घूमने लग जाता है, मेरे से नहीं होगा। दिस इज वॉट विल कम इन योर माइंड। क्यों ये चीज़ आपके मन में आएगा? क्योंकि आपका जो स्वभाव है, इट इज़ कमिंग बैक, द ओल्ड स्वभाव, है ना। एंड वी थिंक दैट वी कांट चेंज, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ वी पुश अवर सेल्फ एंड इफ वी क्लेंस अवर कॉन्शियसनेस, then easily this thing can happen. Otherwise you can never change. हमारा एक्चुअल स्वभाव क्या है? What is our actual स्वभाव? हाँ, that हम भगवान के सेवक हैं. We are part and parcel of God. That is our actual स्वभाव. पर क्या अभी हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा हो रही है? हाँ, नहीं हो रही है. क्यों? Because the wrong स्वभाव is activated now. So this push every day, every time some students come, they come and request you कि थोड़ा जप करो, MMC में आओ, थोड़ा चैंटिंग करो. क्यों ये पुश किया जा रहा है आपको? ताकि आपका कॉन्शियसनेस क्लेंस हो, है ना. ओनली देन योर बैड स्वभाव विल गो अवे. समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज वेरी डिफिकल्ट. एक श्लोक आता है भगवद गीता में, भगवद गीता के 3rd चैप्टर के 34th श्लोक. ओके, मेरे पीछे आप लोग रिपीट कर सकते हैं. इंद्रियस्य इंद्रियस्यर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्मा वशम अगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो. तो इसका ट्रांसलेशन में देखिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है. देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट द अटैचमेंट एंड एवर्जन पर्टेनिंग टू द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट. वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट अटैचमेंट एंड एवर्जन. मतलब हमारा जो पुराना स्वभाव है उसे कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, बिकॉज दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. अगर हम लोग इसके अंदर आ गए ना, देन राग द्वेष यानी क्या करेंगे, हमारे हार्ट को वीक करेंगे. हार्ट को वीक कर दिया, हृदय दौर्बल्यम, उसे क्या बोलते हैं? हृदय दौर्बल्यम. आपका हार्ट जो है दुर्बल, वीक हो गया. अब हृदय दौर्बल्यम के 4 पार्ट्स है, याद रहेगा? हाँ, आई गिव सम एग्जांपल्स एंड आई हैव टोल्ड यू कि स्पिरिचुअल बल का इंपॉर्टेंस क्या है. देन आई हैव टोल्ड यू स्वभाव के बारे में, जिसके वजह से हृदय दौर्बल्य वीक हो जाता है. तो हृदय दौर्बल्य की 4 पार्ट्स. ओके, फर्स्ट इज तुच्छ आसक्ति. क्या है? मीन्स अटैचमेंट टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ओके, अभी आपको जॉब लगा है, अच्छा खासा पैकेज है, तो आपने आईफोन खरीद लिया. अभी टैक्सी में जा रहे हैं, ओके, आपका बैग में आईफोन भी, आपका बीट बैग भी है जिसमें आप जॉब करते हैं, पर गलती से वो बैग टैक्सी में छूट गया और वो साधारण टैक्सी था. उबर ओला ने ताकि आप नंबर ट्रैक कर पाए. येलो टैक्सी, आपने नंबर भी देखा नहीं, और आप आकर देखा, अरे मेरा बैग तो अंदर ही छूट गया जिसमें मेरा बीट बैग और मेरा आईफोन था. तो सबसे ज़्यादा ख्याल किसका आएगा? बीट बैग का या आईफोन का? क्यों? मटेरियल अटैचमेंट है उसमें. आईफोन तो है, आईफोन चला गया तो सब कुछ चला गया. मैं खुद चला गया, आईफोन मैं खुद चला जाऊंगा, सब कॉन्टेक्ट हर एक चीज़ चला जाएगा. पर बीट बैग जिस पे हम जब करते भगवान को याद करते हैं, वो हमारे मन में नहीं आएगा. इनफैक्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट वो मन में आएगा. दिस कॉल्ड अटैचमेंट टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स. ओके, तुच्छ आसक्ति. आई एक्सप्लेन यू विद स्मॉल एग्जाम्पल. सेम थिंग वॉज द प्रॉब्लम ऑफ धृतराष्ट्र. ये धृतराष्ट्र एक प्रॉब्लम था जिसके वजह से पूरा महाभारत का युद्ध हुआ. अटैचमेंट टू हिज सन. एक अटैचमेंट के वजह से हाउ मेनी पीपल डाइड, है ना. देन सेकेंड कम्स कुटिनाटी. कुटिनाटी मीन्स व्हेन आवर हार्ट बिकम्स वीक, वी स्टार्ट फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स. हमारे इक्वल्स में, फिर हमारे सीनियर्स में हम दोष देखते हैं, ये ऐसे ही बोलता है, ऐसे क्यों करता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, है ना. जब स्टार्टिंग में मिलते हैं तो वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज नाइस, बट 1 महीने के बाद धीरे धीरे हम लोगों में फॉल्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं. यस और नो? दिस कॉल्ड कुटिनाटी. अगर हमारे ये फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी आ रही है, मतलब हमको समझना चाहिए हमारा हार्ट वीक है.
हृदय दौर्बल्यम, ठीक है. देन कम्स थर्ड इज द्वेष. द्वेष मीन्स व्हाट? ग्रज. किसी चीज के प्रति, किसी इंसान के प्रति ग्रज. एंड देन स्वप्रतिष्ठा. स्वप्रतिष्ठा मतलब प्रेस्टीज. इज्जत चाहिए मुझे, इज्जत लोग देना चाहिए. समझ रहे? प्रतिष्ठा. तो क्या क्या चार चीजें जिसके वजह से हार्ट वीक होता है, दौर्बल्यम? पहला क्या है? ओके, तो चार. सेकंड कुटिनाटी. थर्ड द्वेष यानी ग्रज. और फोर्थ स्वप्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज. याद रहेगा? तो ये 4 चीज को हमें ओवरकम करना है. और ये 4 चीज को ओवरकम करने के लिए वी नीड स्ट्रेंथ टू डू दिस थिंग. लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. ग्रज यानी द्वेष, किसी के प्रति द्वेष रहना. ओके, सो ये 4 चीज यानी कि हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी नीड बल, शक्ति चाहिए. नॉट सम ऑर्डिनरी पावर, वी नीड लॉट ऑफ पावर टू ओवरकम दिस थिंग. हम कई जन्मों से इसके अंदर फंसे हुए हैं. एंड दैट स्ट्रेंथ विल गेट फ्रॉम लॉर्ड बलराम. बलराम जयंती इज कमिंग. बलराम जी का अपीयरेंस डे आ रहा है. दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट लॉर्ड बलराम. सो वी शुड इंटेंसली प्रे टू बलराम जी. ओके, कि प्लीज़ मुझे बल दीजिए, मैं शक्ति दीजिए कि आई विल नॉट गेट वीकेंड एंड फॉल इनटू ऑल दिस थिंग्स. तो प्रभुपाद जी ने तो हमें नॉलेज दिया है, गीता का नॉलेज आप क्लासेस सुनते हैं. और उस नॉलेज की तलवार को उठा के माया के चंगुल को, नेट को काटने के लिए आपको बल चाहिए. और वो बल बलराम जी देंगे. और बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? गुरु नित्यानंद प्रभु. गुरु ये बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव है. समझ रहे हैं? सो वी शुड इंटेंसली प्रे टू लॉर्ड बलराम. नाउ ही इज कमिंग. वी शुड इंटेंसली प्रे. और अगर हम बलराम जी को प्रे करेंगे ना, हमारे सब डर चले जाएंगे. देखिए भागवत गीता के 18 पॉइंट्स में कृष्ण भगवान ने क्या बोला है, अगर मैं पीछे रिपीट कीजिए. सर्वधर्म परित्याग्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्यामि मा शुचा. कृष्ण भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे अर्जुन को? गीता के लास्ट में, लास्ट चैप्टर गीता में कृष्ण भगवान क्या बोल कंक्लूजन में? Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. क्या? Do not fear. समझ रहे? Same thing. So if you take shelter of Balram, no, then you will not fear. For example, देखिए कृष्णा बलराम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत, लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि 98% बोथ आर सेम. क्या क्या डिफरेंसेस है? एक कलर, एक यूथ, है ना. और मेन डिफरेंस क्या है कि बलराम जी सेवा भाव में है. ओके, ही इज इन मूड ऑफ सर्विंग, है ना. इज इन मूड ऑफ सर्विंग कृष्णा. तो ये सेवा का भाव है ना. दिस भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द फॉलन सोल्स बैक टू कृष्णा. इस सेवा भाव. ओके, देखिए वॉयलेंस का डेफिनेशन क्या है? वॉयलेंस मतलब क्या? ओके, और वॉयलेंस मतलब क्या? मारपीट, झगड़ा. ओके, देखिए इंडिया में मुगल्स ने अटैक किया, है ना. दे अटैक्ड अवर कंट्री. उन्होंने मारपीट, झगड़ा किया, दूसरों को हर्ट किया, है ना. मंदिरें तोड़े, बहुत कुछ गलत काम किया, वॉयलेंस किया, है ना. देन ब्रिटिशर्स केम. दे डिड द सेम थिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर. उन्होंने वॉयलेंस किया. 200 साल तक इंडिया को लूटते गए, हर एक चीज़ लेते गए, वॉयलेंस किया इतना. यस, पर there is one more violence which is very very dangerous and which is above all this violence. जानना चाहेंगे? ओके, जानना चाहेंगे? क्या है कि एक बहुत ही बड़े आचार्य ने ये बात बोला है कि इंडिया हैज फेल्ड, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ओके, इंडिया हैज फेल्ड टू प्रीच द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड इज सफरिंग. समझ रहे हैं?
किसका गलती है? इंडियंस का गलती है। अभी देखिए वॉयलेंस का मतलब क्या है, देखिए हम लोग कौन है? वी आर ऑल सोल्स, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, भगवान के हम लोग अंश है ना। आर वी द बॉडी? आकाश, हम बॉडी है कि सोल है? सोल है ना, तो हम सोल है। बट नाउ वी हैव बिकम इम्प्योर एंड नाउ एक लड़का फोन में, उसका भी एग्जाम्स है कुछ दिनों के बाद, यस आशीष, पर वो फोन में कुछ गलत चीज़ें देख रहा है, देख के डिप्रेस्ड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर कुछ गलत कर रहा है फोन में, मोबाइल से गेम एडिक्टेड है। इजंट ही सफरिंग मनीष? इज सफरिंग और नॉट? है ना। तो अभी इस एरिया में आप अगर देखेंगे मैक्सिमम लोग यही प्रॉब्लम है, सफरिंग कर रहे हैं। अरे आपके माता पिता आपको पैसा दे के यहाँ पर भेजे हैं कि मेरा बेटा कुछ बन के आएगा, मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। somebody's parents are farmers, somebody parents are working somewhere, somebody parents are लोन लेके यहाँ पर भेजा है, और बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है? माया के चंगुल में आके is suffering. So if we are seeing that person is suffering and if we don't go and save that person, isn't it violence? Violence है कि नहीं? That's the biggest violence. मुगल और ब्रिटिश का violence तो सामने कुछ नहीं है. The biggest violence. Somebody's life, somebody's family's life is going to be spoiled. That's why this preaching is very important. जो आप किसी को देख रहे हैं अनुराग की वो सफ़र कर रहा है, you should go and you should help that person. समझ रहे हैं ना? This is the importance of preaching. Otherwise you are doing violence only. आप बोलेंगे मैं तो कुछ पाप नहीं है, आपने बहुत पाप किया है, आपके सामने इतना लोग सफ़र कर रहे हैं, आप उनको बचा नहीं रहे हैं, तो आप पाप कर ही रहे हैं, रिएक्शन तो मिलेगा ही आपको। फिर बाद में वही लोग आके आपको रिएक्शन देंगे। इंडिया ने प्रीच नहीं किया पूरी दुनिया को, लास्ट में अटैक किसके ऊपर हुआ? इंडिया के ऊपर ही हुआ ना। मुगलों का अटैक इंडिया को ही किया। इंडिया वॉज द रूलर ऑफ होल वर्ल्ड। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज यूज्ड टू रूल द होल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड पर भारतवर्ष था, बट प्रचार करना बंद कर दिया, तो बाकी लोग आके इंडिया को लूट रहे, इंडिया को ही कर रहे हैं। अभी वही चल रहा है, इंडिया के टैलेंटेड ब्रेन्स को जाके अपने कंट्रीज में ले जा रहे हैं। ऑल द IITians, द क्रीम ऑफ इंडिया इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री ओनली, इतने सालों के बाद भी। बचपन में तो सुना था इंडिया डेवलपिंग कंट्री, अभी वही है, 20 साल हो गया इंडिया चेंज नहीं हुआ, क्यों? अभी भी लूटा जा रहा है। तो कम टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कॉज इज दैट वी आर नॉट स्टॉपिंग द वायलेंस। समझ रहे? प्रचार नहीं कर रहे, सफ़र कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, हमारे आगे जनरेशन सफ़र करेगी। सो अनलेस वी प्रे टू बलराम कि हमें बल दीजिए कि आई कैन हेल्प समवन, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, till then nothing will happen. We should cry like a child crying for its mother when we pray. But problem क्या है? मॉडर्न एजुकेशन प्रॉब्लम पता है क्या है? बचपन से हमें जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमें सब सिखाएगा, आपको स्किल सिखाएगा, आपको टूल्स सिखाएगा, गोविंद है ना, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, बट आपको एक चीज़ नहीं सिखाएगा कि हाउ टू प्रे, हाउ टू बेग एंड प्रे, वो नहीं सिखाएगा। इसलिए कुछ प्रॉब्लम में भी आएंगे तो मैं खुद से कर लूँगा, स्ट्रगल कर रहा है पर किसी से हेल्प नहीं लेगा, खुद से मैं ट्राई करूँगा, खुद से मैं पहले कर दूँगा। समझ रहे हैं? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ आवर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। सो व्हेन डिफिकल्टीज कम, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी टू कॉल गॉड, टू रिमेंबर गॉड। पर हम क्या भगवान को याद करते हैं डिफिकल्टीज में? हमारे कंपनियों में डिलीवरी का डेट रहता है, आज आपको एक काम दिया है, ओके, एक सम पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम यू हैव टू कंप्लीट, ओके, एंड मल्टीपल टीम्स रहता है और हर टीम अलग अलग एस्पेक्ट्स पे काम करेगा और हर एक टीम का काम एक से कनेक्टेड है, ओके। सम इज डूइंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सम इज डूइंग बैक एंड डेवलपमेंट, सम इज डूइंग इंटीग्रेशन। सो एवरी टीम्स पार्ट इज कनेक्टेड टू वन अनदर, ओके। उसका डेडलाइन रहता है, उसके पहले आपको कंप्लीट करना है। मैं बहुत बार देखा हूँ बड़े बड़े लोग कंपनी में, ओके, सुबह से बैठे हैं, कर रहे 3-4 घंटा हो गया, लंच टाइम हो गया, फिर भी वो लॉजिक क्रैक नहीं कर पा रहा है, डीबग कर रहा है, एरर सारे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, जाके बाहर का 1 कप चाय और 1 सिगरेट पी रहा है।
मैं एक सिंपल डिफिकल्टी का एग्जांपल दिया आपको जो आप लोग सब लोग फेस करने वाले फ्यूचर में. ओके, simple difficult. I am not saying family condition and that. I am saying simple professional difficulty which you are going to face. People go and smoke, they drink alcohol. They don't pray to God. They do all this sort of things. Devotees, अगर एक ट्रेनिंग आप लेंगे वॉइस का वेरी सिस्टमैटिकली, डिफिकल्टी आएगा, विल गो एंड विल चैंट वन नॉट एंड कम बैक. भगवान को याद करेंगे, विल चैंट वन नॉट एंड सी माइंड विल बिकम सो क्लियर, लॉजिक अपने आप मिल जाएगा. मैं कोई एक्सपीरियंस करके देख चुका हूँ. जो लॉजिक 3-4 घंटों से ट्राई करके भी नहीं मिल रहा है, क्लिक हो जाता है. भगवान को याद करके देखो, जब करके देखो, सिगरेट पी के आओ, कुछ नहीं मिलेगा. समझ रहे? सिंपल मैं आपको मॉडर्न एजुकेशन का फॉल्ट बोल रहा हूँ. देखिए सिंपल चीज़ आप लोग में से, ये हम लोग बचपन में सिखाए नहीं कि हाउ टू प्रे. आप लोग में से कितने लोग यहाँ पर जब आते हैं फ्राइडे और संडे को, आप लोग प्रणाम करते हैं भगवान को? कितने लोग प्रणाम करते हैं? हाथ उठाइए. सब लोग नहीं करते हैं. बहुत लोगों को बोलना पड़ता है कि भगवान को प्रणाम करो. ठीक है, प्रणाम कर, तो प्रणाम करने के पीछे उद्देश्य क्या है? हाँ, वाई डू यू प्रणाम? मैं देखता हूँ बहुत लोग आते हैं, बस प्रणाम किया, फिर प्रणाम किया, फिर बैठ गए, बस. हाँ, जब आप प्रणाम करते हैं भगवान को, आफ्टर डूइंग प्रणाम यू हैव टू गो एंड यू हैव टू प्रे टू गॉड. प्रणाम करने के बाद सामने आके भगवान को प्रे करना चाहिए. जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, राधा गोविंद जी, भगवान आपके सामने हैं, आपने उनको प्रणाम किया अभी, एंड देन यू हैव टू प्रे टू देम. प्लीज गिव मी इंटेलिजेंस, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ, सो दैट आई कैन रिमेंबर यू एवरी टाइम. आई कैन स्टडी एंड आई नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन माई स्टडीज, इन माई एकेडमिक्स. आपको याद करके आपकी सेवा कैसे अर्जुन के जैसे मैं आगे बढ़ूँ. सिंपल बेसिक प्रेयर हम करते हैं. बहुत लोग सिखाया नहीं गया, माता पिता ने भी नहीं सिखाया बचपन से कि प्रणाम करने का प्रे करना चाहिए. टीचर ने भी नहीं सिखाया स्कूल में. दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम. सो सिंपल थिंग नोबडी हैज टॉट अस. समझ रहे हैं? कॉग्निजेंट का टैगलाइन है, पैशनेटली कॉग्निजेंट. चैलेंज के बाद चैलेंज आना चाहिए. हम चैलेंजिंग सिचुएशन को पार करेंगे. कर करके आदमी थक जाता है, बट यहाँ पर वहाँ पर अगर आप उसको क्लियर नहीं किए ना किसी भी चैलेंज को, आपका रेटिंग्स कम हो जाएगा. आपका इज्जत, सो कॉल्ड इज्जत जो है, विल कम डाउन अमंग्स योर कलीग्स. तो कुछ नहीं आता है, इसको कुछ नहीं आता है, इससे नहीं होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा. बट यहाँ पर अगर आप भक्ति करेंगे, इवन आप ट्राई कर रहे नहीं हो पा रहा है, पर आप बस ट्राई कर रहे हैं ना, दैट इटसेल्फ इज पास. समझ रहे हैं? उसी में आप पास है. सक्सेस अगर नहीं भी मिला फिर भी आपने ट्राई किया, कृष्णा जस्ट सीज द एंडेवर. आपने प्रयास किया कि नहीं, दैट इज अच्छा है कि नहीं कि बुरा है? बताओ. आप यहाँ पर 99% करके भी 1% नहीं क्या फेल हो जाएंगे. भक्ति जीवन में आप 1% भी करो, 99% भी फेल होगा तो क्या पास हो गए आप, सक्सेस, कृष्णा के लिए सक्सेसफुल है कि नहीं? दिस इज द एडवांटेज ऑफ इट. सो देखिए, सो बलराम वांट टू सी योर एंडेवर. बलराम जी हमारा एंडेवर को देखना चाहते हैं कि हमारा एंडेवर कितना है. देखिए अभी समझिए एक इंसान है, अच्छे से एसी रूम में बैठा है, 72 इंचेस का एलईडी स्क्रीन सामने है, अच्छे से टीवी देख रहा है, एक हाथ में डोमिनोज का पिज्ज़ा है, एक हाथ में कोको कोला है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, जिंदगी के पूरे मजे लूट रहा है. अब सामने आके कोबरा सांप आके बैठा, तो क्या मजे लूट पाएगा? सेम सिचुएशन हम लोग भी उस सिचुएशन में. हमारे सामने डेथ नाम का एक काल रूपी सर्प आके बैठा हुआ है, और हम लोग सोच रहे कि वी कैन एंजॉय डूइंग दिस एंड दैट, ऑल दोज थिंग्स. ये सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस वॉइस और दिस टेम्पल्स और दिस सेंटर्स, डिफरेंट सेंटर्स जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, दिस इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, जहाँ पर आपके बीमारी को निकाला जाता है. ओके देखिए, आप जब इस हॉस्पिटल में आएंगे ना, आपको दवा दिया जाएगा. दवा क्या है? प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? 16 माला जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, इज द बेसिक डोसेज. और आप भक्तों के संग में रहिए और गीता पढ़िएगा, इज द बेसिक मेडिसिन. ओके, बीमारी को निकालने के लिए.
तो मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में, सीख जाते हो कि गीता कैसे पढ़ना है, श्लोक कैसे निकालना है, श्लोक कैसे मैं सीख गया, ठीक है, जब करना भी सीख गया, ओके, 16 माला तक आ गया, वेरी नाइस। एंड देन क्लास के सुना, यूट्यूब में बहुत सारा स्पीकर्स मिल गया, अमोगिला प्रभु दिस दैट, वेरी मेनी स्पीकर्स मिल गए, ठीक है। तो अभी अभी वॉइस जाने का ज़रूरत क्या, मंदिर जाने का ज़रूरत क्या है, सब तो जान ही गए, मैं रूम में बैठ के हम कर लेंगे। नहीं जी, ये हॉस्पिटल का एक सीक्रेट है, जानना चाहेंगे क्या है? सीक्रेट है, जो डॉक्टर आपको सिखाता है ये चीज़, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, वो डॉक्टर की इच्छा के हिसाब से मेडिसिन काम करेगी, समझ रहे हैं? ये सीक्रेट है, वो डॉक्टर के इच्छा के हिसाब से मेडिसिन काम करेगी। स्पेशल हॉस्पिटल, उसका मीनिंग क्या है कि जो गुरु है, रिप्रेजेंटेटिव जो गुरु के हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनकी कृपा के बगैर दवा काम नहीं करेंगे। आप कितना भी मेहनत कर लो, हजारों हजारों माला घस घस के आप ये कर लो, कितना भी यूट्यूब में क्लासेस सुन लो, इफेक्ट नहीं होगा, आपका कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई नहीं होगा। डॉक्टर की इच्छा नहीं हो रही है ना, कृपा नहीं है आपके ऊपर। सो कृपा इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, समझ रहे हैं? कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी क्वेश्चंस पूछ लो, कितना भी डाउट सॉल्विंग कर लो, चेंज नहीं आएगा लाइफ में, आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? दिस इज द सीक्रेट, ओके। तो वी शुडंट बिकम अ फ्रीलांसर डिवोटी, जाके फ्रीलांसिंग किया, कभी यहाँ पर जब कर लिया, कहीं वो मंदिर घूम के ये किया वो किया, कहीं गंगा में खुद ही जाके नहा के ये हुआ वो सब कुछ कर लिया, पर रिजल्ट नहीं आ रहे। सब कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। फ्रीलांसिंग डिवोटी, डॉक्टर का इच्छा नहीं है ना, रिजल्ट कैसे आएगा? इंडिया में सब लोग वही करते हैं, दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट ग्रोइंग एनीवेयर। Everybody want to become freelancing devotee in India, okay? So that's why it is very important that when we come, we beg for the mercy. कृपा के लिए हमें भीख मांगनी चाहिए, मेरे को कृपा कीजिए कि मैं बढ़ सकूँ आगे। That is very important. And Balram is the very personification of the कृपा। बलराम जी के हाथ में क्या होता है? हल होता है ना? हल से क्या करते हैं? जमीन में उसके क्या बोलते हैं, सॉइल को लूज किया जाता है, एंड देन उसके अंदर बीज बोया जाता है। तो उसी प्रकार बलराम जी अपना हल लेके हमारे बंजर हृदय पे उसको चलाते हैं। कष्ट तो होगा ना चलाएंगे तो, दैट कष्ट इज नथिंग बट दिस ट्रेनिंग ऑफ वॉइस। कष्ट तो होगा ही, सुबह सुबह उठना है, रात में जल्दी सोना है, कुछ यूट्यूब में देख नहीं पाऊंगा, रात में पिक्चर नहीं देख पाऊंगा, अरे बाप रे कैसे इतना कष्ट में सह पाऊंगा। घूमने को जाना है, थोड़ा अड्डा मारना है दोस्तों के साथ मिलने के लिए, अरे नहीं करेगा, कष्ट हो रहा है बहुत। तो बलराम जी हल चला रहे हैं ना हार्ट में, तो कष्ट होता है, ओके। अगर वो कष्ट को आप थोड़ा टॉलरेट कर लिए, वो आपके हार्ट में भक्ति का बीज बो देंगे। बस उसका ही वेट करना है, बस थोड़ा अगर उस कष्ट को टॉलरेट कर लेंगे, आपके हार्ट में भक्ति का बीज बो देंगे, देन दैट्स ऑल, योर लाइफ इज विल गो वेरी स्मूथ आफ्टर दैट। एंड वो टाइम लेता है, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ समय लेगा, समझ रहे हैं? एंड दैट इज द ट्रेनिंग सिस्टम गिवन टू यू। चाहे भी कष्ट भी हो रहा है, बट यू शुड टॉलरेट इट, कि बलराम जी मेरे को कृपा कर रहे हो और कुछ नहीं, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। एमएमसी में आओ, मन नहीं कर रहा है एमएमसी में आने का, कष्ट हो रहा है ना, समझ रहे? बलराम जी हल चला रहे बंजर हार्ट पे, क्या मनीष, है ना? So you have to tolerate that thing. When you tolerate it, then only will get bhakti. Otherwise life में change आएगा ही नहीं. So this is now this is what basics I have told you. Now we have like more 20 minutes. 10 मिनट में मैं आपको 2 स्टोरीज बताऊंगा, सुनना चाहेंगे कहानी? ओके, बलराम जी की 2 वंडरफुल स्टोरीज, हाँ, एंड देन विल कंक्लूड। तो जब कृष्णा बलराम जो है वो गायों को चुराने के लिए जाते थे वृंदावन के जंगलों में, और बहुत पापा आनंद करते थे। एक्चुअली गायों को चुराने का जरूरत, गाय तो अपने आप से बात मानती थी, वो खुद भी जाके आ जाती थी, दे वेरी ओबीडिएंट काउज। पर फिर भी वो जाते थे, क्यों? ताकि दूसरों को अपना एसोसिएशन देने के लिए, और बहुत मजे करते थे वहाँ पर। बेल का फ्रूट्स है, एक जन ने बेल का फ्रूट से ऊपर फेंका, और दूसरा बेल का फ्रूट लेके उसको हिट करना है बराबर। हिट किया तो सब लोग वाह वाह करेंगे, नहीं तो अरे कुछ नहीं हुआ।
फिर वो लोग अलग अलग गेम्स खेलते थे और बहुत घूमते थे फिरते थे। और जब बलराम जी थक जाते थे तो किसी गोप पालक के लैब में आके वो अपना सिर रख के विश्राम करते थे। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग, विश्राम करते थे और कृष्ण भगवान आके उनका पैर दबाते थे। कोई और फ्रेंड्स उनके आके उनको कुछ फ्रूट्स या फ्लावर्स देते थे। सेम, और जब कृष्णा थक जाते थे तो उनके दोस्त उनके लिए कुछ फ्रूट्स लीव्स का एक बनाते थे कुछ उनको सोने के लिए। पीकॉक्स, मोर आते, वृंदावन में बहुत सारे मोर हैं। जो लोग वृंदावन में गए हैं, हाउ मच हैव वेंट टू वृंदावन? ओके, ये हम लोग कैंप हुआ था, आप लोग आए थे। फ्यूचर में वृंदावन में कैंप होगा, यू शुड डेफिनेटली कम। वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल प्लेस। सो वहाँ पे मोर है एंड दे शुड डांस विद मोर। मोर के साथ कॉम्पिटिशन करते थे, डांसिंग कॉम्पिटिशन विद मोर। हम तो यहाँ पर डांस करके थक जाते थे, कृष्णा मोर को थका देते थे डांस करके, वो थकते नहीं। इतना नाइस, वेरी एंजॉइंग वेरी नाइसली, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे खेलते थे। कितने लोगों का बचपन ऐसे खेल खुद करके गुजरा है? ओके, वेरी नाइस। बट मैं देख रहा हूँ आजकल की जनरेशन, हम लोग पुराने वॉइस में रहते थे उस बिल्डिंग में, वो लड़का मे बी 4th या 5th क्लास में मोबाइल में PUBG खेल रहा है। मारो मारो, ये करो वो करो, क्या क्या चल रहा है देखो। ऐसा उसका बचपन जा रहा है। फिर बड़ा होकर क्या सीखेगा? वो ही सीखेगा दूसरों को कैसे मारना है, क्या करना है। सो दिस इज हाउ गॉड इज सेटिंग एन एग्जाम्पल, इवन हाउ टू लीड योर चाइल्डहुड ऑल्सो। बचपन भी कैसे बिताना चाहिए। तो एक बार की बात है, तो अच्छे से सब लोग मज़े कर रहे थे, खेल रहे थे, अब सब बच्चे थक गए। ओके, और वहाँ से एक बहुत ही, वृंदावन ना 12 वन है। ओके, वृंदावन वैसे 12 वन है वृंदावन में। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक सुगंध, एक खुशबू आ रही थी एक फ्रूट की, जिसका नाम है ताल। सुना है ना ताल फ्रूट? खाया है किसी ने? आपको वॉइस में भी खिलाएंगे कुछ दिनों में, उसका सीजन अभी आ रहा है ताल का, ठीक है, फीस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप खा के देखिए, बहुत टेस्टी ताल फ्रूट का स्वीट्स होता है। तो ताल फ्रूट का एकदम बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, तो सब बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कृष्णा बलराम जी को ही बोला कि बहुत ही ब्यूटीफुल उसका स्मेल आ रहा है, भूख भी लग रहा है, अभी थक गए सब लोग। तो स्मेल की तरफ खींचे के चले गए, और खींचे के चले गए। एक फॉरेस्ट था जिसका नाम है ताल वन। 12 वन में से एक वन का नाम है क्या है? ताल वन। तो उस वन में गए, पर उस वन में एक प्रॉब्लम था। उसमें एक डीमन था, राक्षस, जिसका नाम था धेनुकासुर। सुना है कभी नाम? धेनुकासुर वॉज द नेम ऑफ द डीमन। धेनुकासुर और कोई नहीं, गधा था, गधा, डोंकी डीमन। ओके, धेनुकासुर डीमन था, और वो इतना स्ट्रांग था कि इंद्र भी उसे डरते थे। वो ताल के जो फ्रूट से सोमरस बनाते थे, सोमरस बनता था देवताओं के लिए या कंस के लिए। इंद्र उससे डरते थे, इंद्र का वज्र का प्रहार, इंद्र का वेपन्स उसके ऊपर काम नहीं करता था, उतना पावरफुल था वो धेनुकासुर, डोंकी। फिर क्या हुआ, अब जब ये लोग अंदर गए और अब भूख लग रहा है, तो बड़ा ताल के वृक्ष को बलराम जी जोर जोर से खिला रहे हैं, और सब ताल के फ्रूट्स नीचे गिर रहे, बहुत टेस्टी स्मेल आ रहा है। ओके, देखिए कोई भी चीज़ हम लोग जब खाते हैं ना, उसमें 4 प्रॉपर्टीज होता है। ओके, आप लोग मंगल आरती गाए सुबह, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। हाँ, समझ लें, मतलब 4 टाइप ऑफ प्रसाद होते हैं। ओके, सम टाइप ऑफ प्रसाद आर देयर दैट वी च्यू, चबाने वाले कुछ फूड होते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? खाए कि नहीं पहले कभी? कुछ फूड होते हैं जिसे पीना पड़ता है, सम फूड को सक करना पड़ता है, कुछ फूड्स को लिक करना पड़ता है खाने को, फूड को। तो ये 4 प्रकार के फूड होते हैं, उस 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट क्या है कि वो स्मेल उसका अच्छा होना चाहिए खाने का, तभी तो अट्रैक्ट होंगे ना खाने के प्रति। स्मेल अच्छा होना चाहिए। देन जब हम उसको टच करेंगे, वो टच का फील अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, थर्ड वन। और लास्ट वन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। 4 प्रॉपर्टीज होती है। तो जब वो बच्चे वहाँ पर गए, तो बेल फ्रूट अच्छे दिखने में भी अच्छे थे, अच्छी स्मेल भी आ रही थी, बस उनको भी उसको टेस्ट करना है। तो बलराम जी पेड़ को हिला रहे हैं और सब फ्रूट नीचे गिर रहे हैं। तो धेनुकासुर द ग्रेट डोंकी, उसको उसका भनक लग गया कि कोई तो मेरे वन में आए हैं चोरी करने के लिए, कुछ तो गड़बड़ है। तो देख लिया, अरे बच्चे लोग यहाँ पर आके चोरी करते, तो उनको मार डालूंगा मैं।
तो वहां से दूर से दौड़ के स्पीड से आ रहा था, ऐसे दौड़ रहा था कि पूरी धरती कांप रही थी। आपने कभी देखा है रेगिस्तान में कोई कार जाती है स्पीड से, जैसे धूल उड़ती है ना दोनों साइड में एकदम, वैसा पूरा धूल उड़ रहा था, उतना स्पीड से आ रहा था। और बलराम जी यहाँ पेड़ को हिला रहे हैं, वो पीछे स्पीड से आ रहे हैं, उन्हें कोई अफेक्ट नहीं है बलराम जी को। वो पेड़ को हिला रहे, फ्रूट सब गिर रहे नीचे। और जब धेनुकासुर वहां से आया, वो पहले स्पीड से आया, बलराम जी को क्रॉस किया। बलराम जी यहाँ पर खड़े हैं, स्पीड से आया, बलराम जी को क्रॉस किया, फिर पीछे आके पीछे के पैरों से लात मारा छाती पे। बलराम जी को कुछ नहीं हुआ। तो कितना बड़ा गधा है देखो, इतना मोमेंटम से आ रहा है स्पीड से, आगे डायरेक्टली मार सकता है ना, इतना स्पीड से आके आगे जाके आप मोमेंटम लूज किया, फिर आगे पीछे के लात से लात मारता है। तो गधा ही है, इसके धेनुकासुर गधा। बलराम जी को भी 2-3 बार मारा, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। बलराम जी को देखो अरे बाबा डिस्टर्ब कर रहा है, उसको एक हाथ से, हैवी था वो, एक हाथ से उठाया, जोर से उठा के पेड़ के ऊपर फेंक दिया, ताल के पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर गया, वहां पर जाके शरीर छोड़ दिया, मर गया। और इतना हैवी था तो जो ताल का जो वृक्ष था उसका वेट सह नहीं पाया, वो झुक के टूट गया, वो दूसरे ताल के वृक्ष पर गिर गया। दूसरा ताल का वृक्ष ये दोनों का वेट सह नहीं पाया, वो भी अपरूट होकर तीसरे ताल के वृक्ष पर गिर गया। ऐसे करके डोमिनो इफेक्ट हो गया, सब गिरने लग गया। और सब गिरने लगा, बहुत सारे फ्रूट्स गिरने लगे नीचे, फ्रूट्स और फ्रूट्स का जूस निकलने लगा। और ये सब देख के अभी वो डोंकी के और डोंकी फ्रेंड्स थे और गधे थे, अरे हमारे लीडर को क्या हो गया, वो मर गया, कैसे हो, कौन आया यहाँ पर। तो वो लोग भी आए पूरा टीम में, 10-12 डोंकीज भाग भाग के आए, हम लोग आप जाके अटैक करेंगे। वो भी अटैक किए, और जब अटैक करने को आए, कृष्ण बलराम रेडी है वहाँ पर। बलराम जो कृष्णा एक पूछ पकड़ के गोल गोल घुमा के सब लोग को सब ट्रीज के ऊपर डाल देते। कृष्णा चक्र ठाकुर बोलते हैं कि इतना अच्छा एक दृश्य बना कि सब मरे हुए डोंकीज पेड़ पे थे, ब्लूइश ग्रे कलर का बॉडी था वो लोग का, और नीचे सब फ्रूट्स और उसका जूस और उसका टेस्टी स्मेल। जब कृष्ण भगवान मारते भी है ना, तो एक ब्यूटीफुल एक ये बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ क्वेश्चन ये आता है, देखिए वृंदावन में मैक्सिमम राक्षसों को कृष्णा नहीं मारा, ओके, पर इस राक्षस को बलराम जी ने क्यों मारा? जानना चाहेंगे? कृष्णा भी तो मार सकते थे, अनुराग, है ना? जानना चाहेंगे फिर क्यों मारा? देखिए इसकी एक और स्टोरी है, मैं आपको बोलता हूँ। तो क्या हुआ था कि बलि महाराज, ओके, ये कथा आती है गर्ग संहिता में, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि बलि महाराज जो थे, तो बलि महाराज का एक बेटा था, ओके, उसका नाम था शशि शिखा। क्या नाम था? शशि शिखा, नो? बलि महाराज का बेटा है तो बहुत कुछ ऐश्वर्य सब कुछ है। सो ही वाज एंजॉयिंग विथ 10s and thousands ऑफ वुमेन, एक पर्वत पे एंजॉय कर रहा था। और उस पर्वत के अंदर एक गुफा में दुर्वासा मुनि थे। दुर्वासा मुनि का नाम सुना होगा आपने, महाभारत में इंसिडेंस याद है ना? दुर्वासा मुनि, रिमेंबर? सेल्फ मैरिज का फर्स्ट पीस फॉर में बोला दुर्वासा मुनि के बारे में, भूल गए? हाँ, दुर्वासा मुनि फेमस फॉर व्हाट? उससे गुस्से के लिए फेमस है। तो दुर्वासा मुनि गुस्से से आए, ये क्या सब कर रहा है, विष्णु में तपस्या को भंग कर दिया, और उसको उन्होंने श्राप दिया, तुम गधे के हरकत को तुम गधे बन जाओ, लेकिन उसको श्राप दिया। और भी वो समझ गया हमें श्राप मिल गया, बलि महाराज का बेटा है, बलि महाराज ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड कृष्णा। तो जब आके इनको क्षमा मांगा तो मैं बोला ठीक है, तुमको श्राप दिया पर आपका उद्धार बलराम जी करेंगे। और फिर जब वो धेनुकासुर बन के यहाँ पर आया, देन व्हाट हैपेंड? बलराम जी ही केम एंड ही उनका उद्धार किया। और जैसे वो मर गया ना, उसका अंदर से सोल निकला, एंड ही गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल बॉडी एंड ही वेंट बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो भी ऋषि मुनि श्राप भी देते हैं ना, वो श्राप में भी ब्लेसिंग होता है, समझ रहे? गोइंग थ्रू भोग अपने होकर चेक कीजिए एक बार, भोग लग गया है, ओके, तो उसमें एक ब्लेसिंग होता है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। बट ये जो राक्षस धेनुकासुर है, ये क्या सिग्निफाई करता है? मैंने कथा आपको क्यों बोली बताया? तो धेनुकासुर सिग्निफाइज ग्रॉस इग्नोरेंस। क्या सिग्निफाई करता है? ग्रॉस इग्नोरेंस मतलब क्या? मैं और मेरा, आई, मी एंड माइंड, उसको बोलते हैं ईगो, EGO। का डेफिनेशन क्या है? मैं बोला था एक क्लास में, ईगो का फुल फॉर्म क्या है?
भूल गए क्या ईगो बोलता हूँ? एलिमिनेटिंग ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ईगो हमारे अंदर है, हम लोग खुद का ही ग्रोथ नहीं होता है, समझ रहे हैं? दैट वॉज वॉट दिस डीमन वॉज सिग्निफाइंग। तो व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ एज दिस बॉडी, दो टाइप की ईगो होती है, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो। ट्रू ईगो क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम एक सोल है। फॉल्स ईगो क्या है कि हम बॉडी है। ये सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, आप एक रेस्टोरेंट में गए, हाँ चलो मेरे साथ है, जस्ट 10 more minutes, ओके? एक्चुअली ऑलमोस्ट रेडी, वो ओपनिंग हो जाएगा। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप टेबल पे बैठे, कुछ खाना ऑर्डर किया, टेबल पे एक ब्यूटीफुल डेकोरेट करके एक गिफ्ट रैप करके एक लाके रख दिया है, पर उसके अंदर बोला, उसके अंदर पता चला उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्टूल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तो टेबल पे बैठेंगे कि भाग जाएंगे वहाँ से? भाग जाएंगे ना, उड़ जाएंगे। अरे स्टूल को इतना अच्छा रैप करके टेबल पे रखा है, भाग जाएंगे, टच भी नहीं करेंगे टेबल को। अब खाना तो दूर का बात है, खाने का इच्छा चला जाएगा आपका। तो अगर हम देखेंगे वास्तविक में, तो हमारा बॉडी इज नथिंग बट अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, बोन, फ्लैश, ब्लड, म्यूकस, पाइल, है ना? शरीर इसी से भरा हुआ है ना, दुर्गंध देता है हर टाइम, मुंह से बास मारता है, सुबह उठने के बाद बॉडी से बास मारता है, नहाना पड़ता है बार बार। ये हमारा शरीर है और हम इस शरीर के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, जिस कॉल्ड फॉल्स ईगो, आई, मी एंड माइंड। क्या है रे भाई? ये तो एक स्टूल का बैग है, खून, हड्डी, यूरिन का बैग है, इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं हम लोग। दिस कॉल्ड फॉल्स ईगो। रेणुकासुर स्पेसिफाइज दिस फॉल्स ईगो। तो ये फॉल्स ईगो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 4 चीज़ बोलते हैं। पहला चीज़ है कि आई, मी एंड माइंड, ये दिस रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सुबह सुबह उठ के हम खुद की दर्शन आरती करते हैं आके मिरर के सामने, हम कैसे दिखते हैं, क्या है, थोड़ा अच्छे से हेयर स्टाइल करेंगे, पाउडर पिटर लगाएंगे, लिपस्टिक लगा के निकलेंगे बाहर, खुद का दर्शन आरती, भगवान का दर्शन करते हैं, हमारे खुद का दर्शन आरती करते हैं हम लोग। ये पहला गलत चीज़ है। सेकेंड इज अटैच टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कंट्री। हम खुद से अटैच हैं, तो मेरा शरीर भारत में जन्म हुआ है, इंडिया, तो आई एम एन इंडियन, पाकिस्तानी मेरा दुश्मन है, तो मारना चाहिए पाकिस्तान को। एक अटैचमेंट टू अवर फैमिली और फ्रेंड्स। मैं बंगाली हूँ, बंगाल इज माई प्लेस, बंगाल आर गुड, बिहारीज आर बैड। वे बोलते बिहारी अच्छे, बिहारी इंटेलिजेंट है, बंगाल लोग ऐसे ऐसे रहते हैं, समझ रहे? ये अटैचमेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, समझ रहे? Just giving an example, don't take it on a personal note, okay? Then third thing is attachment to science and scientist. साइंस बोलेगा तो ही मानूंगा, तो ही मानूंगा नहीं। लॉजिक क्या है इसके, लॉजिक बताओ तो मानूंगा मैं। ये तीसरा अटैचमेंट। और चौथा है अटैचमेंट टू रिचुअल्स। पहले पूछते लॉजिक के पीछे बोलूंगा तो ही मैं करूंगा, और अटैचमेंट टू रिचुअल्स मतलब क्या, मीनिंग पता नहीं फिर भी करते हैं। तो आरती करो, अभी मीनिंग क्या है कि पता नहीं, मम्मी ने बोला कर रहा हूँ मैं, अगरबत्ती दिखाओ, भगवान को दिखा रहा हूँ सुबह सुबह उठ के, पीछे मीनिंग क्या पता नहीं, समझ रहे? रिचुअल्स, ये 4 चीज़ गलत हैं, ओके? तो ये 4 चीज़ सिग्निफाइज धेनुकासुर। धेनुकासुर इज दिस 4 चीज़। तो हम लोग जब सुबह हम लोग बोलते हैं ना, नमो ओम विष्णुपादाय नमम, नमम का मीनिंग क्या है कि मी एंड माइंड जो भी है, मैं आपको मैं दे देता हूँ। गुरु जी, अपने गुरु को या फिर भगवान को हम बोलते हैं मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपने आप को आपको दे रहा हूँ, ओके? मेरी सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, उसको, दैट इज द फर्स्ट प्रेयर, नमो ओम विष्णुपादाय। कीर्तन किया है ना अभी अभी मंगल आरती में, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। और मीनिंग देखिए, मीनिंग जानिए तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। मीनिंग पता है नहीं, हम इतना टाइम से कर रहे हैं, मीनिंग पता नहीं है चीज़ों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओनली बाय साधना, हम जितना अच्छे से हम जप करेंगे, जितना अच्छे से हम लोग किताब पढ़ेंगे, जितना अच्छे से हम लोग सुनेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, इस साधना के बल पे ही हमारा फॉल्स ईगो कम होगा। क्लियर? धेनुकासुर का मैं स्टोरी बोला, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, स्टोरी का क्या सिग्निफिकेंस था? फॉल्स ईगो। कैसे वो क्लियर होगा? बाय डूइंग नाइस साधना, ओके? एंड देन एक और, बलराम जी ने पूरे वृंदावन में 2 ही डिमंस को मारा था। ऑफरिंग हो गया? हाँ,
10 मिनट, ठीक है। तो उन्होंने बस 2 ही डीमंस को मारा था, एक तो धेनुकासुर, एक था प्रलंबासुर। इस कहानी सुना चाहेंगे? प्रलंबासुर कहानी क्या है? प्रलंबासुर ये सब इसी बुक में है, मैं बुक पढ़ रहा था, कृष्णा बुक करके एक बुक है, उसमें सब लीला दी ही गई, वृंदावन में कृष्ण बलराम ने क्या क्या किया, वेरी ब्यूटीफुल वे में, डिटेल में एकदम। तो प्रलंबासुर जो है ना, ये एक और डीमन था। तो अभी उसको कंस ने बोला कि आपको जाके मारना है, कृष्ण बलराम को उनको जाके मारना है। अभी देखो तो कृष्ण तो बहुत सारे राक्षस को मार देता है, हम कृष्ण को नहीं मारेंगे, हम बलराम को मारेंगे। जब तो हर मार ही रहेगा जाएंगे, तो बलराम को जाके मारेंगे, बलराम ज्यादा लोग को मारता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या किया, प्रलंबासुर एक सखा का रूप लिया, कृष्णा के एक फ्रेंड का रूप लिया, ओके। और उस दिन वो जो फ्रेंड था वो बीमार था, तो उसका रूप लेके वो उनकी टोली में आ गया। सब लोग अभी गोचरण करने के लिए गए, सब बच्चे खेल रहे अच्छे से, तो अभी सब खेल रहे, तो अभी उन दोनों में एक टीम बन गया, एक कृष्णा का टीम, एक बलराम का टीम, ओके। और दोनों में कंपटीशन लग गया अभी, ओके। खेलते रहते बच्चे, तो अब दोनों में कंपटीशन, और जो टीम दूसरे टीम को हराएगा, हारने वाला टीम को, जो विनिंग टीम के मेंबर को अपने कंधे पे उठा के उन्हें घुमाना पड़ेगा, ओके। तो ये दिस वाज द काइंड ऑफ स्वीट पनिशमेंट उनका टीम का। पैसे पे बैट में लगा देते, ऐसे खेलते थे। अभी तो पूरी दुनिया बैट पे चला जा रहा है, आईपीएल बैटिंग, ड्रीम इलेवन, हाँ देखिए। सो बहुत अच्छे सब लोग खेल रहे थे, और कृष्णा मैनी टाइम्स ही पर्पसफुली वो हार जाते हैं, अपने भक्तों से हारने को उनको अच्छा लगता है। तो बलराम जी का टीम जीत गया। तो अभी ये जो डीमन था, ये कृष्णा के टीम में था, प्रलंबासुर, उसका दोस्त बन के वहाँ पर आया था। तो अभी हार गए, तो क्या अभी बलराम जी के टीम के सब मेंबर्स को अपने कंधों पे लेके घुमाना है जाके। तो किसी एक कृष्णा ने किसी एक सखा को अपने कंधे पे लिया, उनको घुमाने के लिए गए। तो अभी प्रलंबासुर बोलते, बलराम आप आओ, आप मेरे कंधे पे आ जाओ। बलराम को उन्हें कंधे पे लिया और फिर वो घुमाने के लिए गया, और घुमाते 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 इतना तेज भागने लगा। और भागते क्या, बलराम सोच रहे कि इतना भाग क्यों रहा है, क्या हो गया इसको, थक भी नहीं रहा है, भाग रहा है जोर जोर से। वहाँ के जंगलों के अंदर ले गया बलराम जी को, अभी जंगलों के अंदर ले गया, और बलराम जी को समझ में आया कि अरे ये तो कोई सखा नहीं है, ये कोई डीमन है। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना स्टार्ट कर, अपना वेट बढ़ाया। जैसे अपना वेट बढ़ाया, वो सहन नहीं कर पाया, डीमन था ना, वेट बढ़ रहा है, क्या करो, सहन नहीं हो रहा है उसको, और सहन नहीं हुआ, अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ गया, राक्षस का, बड़ा एकदम टॉल, बहुत लंबा टॉल एक राक्षस का रूप ले लिया। तो देखिए भगवान को बस कुछ ही टाइम लगता है किसी का स्वभाव निकालने के लिए। जब ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर गोइंग ऑन, सुना है हिस्ट्री में, कोल्ड वॉर, वेयर रशिया, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज, दे यूज्ड टू स्पेंड स्पाइज, जासूस भेजते थे एक दूसरे के देश में, उनका साइंटिफिक एडवांसमेंट जानने के लिए। अभी इंडिया चंद्रयान लॉन्च किया, उस जमाने में अमेरिका और उसमें चलता था स्पुतनिक वर्सेस अपोलो, लूना वर्सेस अपोलो, कौन पहले चांद पे जाएगा, कौन पहले लैंडिंग करेगा, कौन ये करेगा, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, वो चलता था। तो अमेरिका बहुत रिसर्च कर रहा था, ठीक है, टॉप कटिंग के टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा था, स्पेस रिसर्च, और जो भी रिसर्च कर रहा है उसका रिजल्ट जर्मन्स और रशियंस को पहले मिल रहा है। हर एक रिसर्च में रशिया ने अमेरिका के पहले ही उसने काम किया है, स्पुतनिक, लूना, ऑल दोस थिंग्स, इट वेंट बिफोर अमेरिका, वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट, ओके। तो सब रिसर्च लीक हो रहा है, अमेरिका इज डूइंग टॉप रिसर्च पर, रशिया और जर्मनी उसके आगे बढ़ा रिसर्च में। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है अभी, कुछ कहीं तो कुछ तो लूप होले, कोई तो मिला हुआ है टीम के अंदर। और ये जो जर्मन स्पाई था, ये उसको लीक कर रहा था, और इतना अच्छा जासूस बन गया कि अमेरिकन रिसर्च टीम में ये बिकम एन बिग पोस्ट ऑफिसर बन गया। अभी उसके सबऑर्डिनेट को उसको डाउट हुआ कि मेरा बॉस कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मे बी, तो भी जानना है क्या कैसे करेंगे। तो उसने क्या किया, एक बार कॉन्फ्रेंस के बाद सब जब रूम से बाहर जा रहे थे, तो उसके बॉस का हाथ दरवाजे के चौखट पे था, जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जिस दरवाजा जोर से बंद कर, इतना सीवियर पेन हुआ, तो जर्मन में कुछ बोला, पकड़ा गया, समझ रहे। जब भी कुछ हुआ तो क्या मदर टंग में बोलते हैं ना, कुछ पेन हुआ तो
जर्मन में कुछ बोला, पकड़ा गया और उसको फिर तभी अमेरिका स्पाई को पकड़ लिया। तो इन द सेम वे भगवान को ज़्यादा समय लगता नहीं है इसका स्वभाव बाहर निकालने के लिए, समझ रहे हैं? अब अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से जब कर रहे हैं, डूइंग एवरीथिंग नाइसली, एक दिन के लिए आपको मोबाइल फ़ोन विथ फुल 5G इंटरनेट देके आपको एक रूम में बंद करके रख दिया, सब बाहर निकल जाएगा स्वभाव आप लोग का, है कि नहीं? 5G अनलिमिटेड इंटरनेट मोबाइल फ़ोन देके आपको बस रूम में रख दिया, कोई टेंशन नहीं, मोबाइल फ़ोन है ना, सब स्वभाव बाहर आ जाएगा, समझ रहे? दैट्स व्हाई एसोसिएशन इज नेसेसरी। अगर हम उस संघ में रह के ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हम अपने गलत स्वभाव को बाहर आने से हम रोक नहीं पाएंगे, उसको मिटा नहीं पाएंगे। तो जब ऐसे हुआ तो फिर बलराम भी चिंतित हो गए कि अरे ये तो मेरे को लेके जा रहा है, तो कृष्णा के पास भी कुछ और डीमंस रहेंगे। हालांकि एक ही डीमन था पर उनको चिंता हुई, और जैसे वो बड़ा हुआ बलराम जो कुछ लगा नहीं, बस एक फिश से एक बस मुक्का मारा, उसका सिर फट गया, बस गिर गया। बलराम जी इतने मतलब पावरफुल है। मैं एक सुन रहा था कि भागवतम में जो भागवतम का कथा चल रही थी, जो भी गुरु जी कोई भी सीनियर डिवोटी आते हैं ना तो हमें प्रणाम करना चाहिए। ओके, लाइक महाराम प्रभु इज कमिंग और सीनियर डिवोटी इज कमिंग, वी शुड बाउ डाउन, हमारे माथा जिन पे लगाना, प्रणाम करना चाहिए। दिस इज द क्या बोलते हैं वे ऑफ शोइंग अ रेस्पेक्ट, कि वो हमें नॉलेज दे रहे, वी आर रेस्पेक्टिंग देम, शोइंग अ रेस्पेक्ट, आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम। तो एक कथा वो चल रही थी, बलराम जी कथा में आए, सब लोगों ने प्रणाम किया, ओके, बट जो स्पीकर था वो उनको प्रणाम नहीं किया। ओके, तो बलराम जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस एक शायद से घास का तिनका निकाला और बस उसको ऐसे उसको फेंक दिया, पूरा उसका पूरा बॉडी को आग लग गया और भस्म हो गया वहीं पर। वो बलराम जी की पावर थी, समझ ले, वो उनका बल है। That's why we should pray with full heart, should beg for him। अभी वो आ रहे हैं, हमें शक्ति दीजिए कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम अच्छे से भक्ति करें, हमारा एकेडमिक में स्ट्रांग रहे, अच्छे से साधना करें, बुक रीडिंग करें, हमें शक्ति दीजिए बलराम जी, हमें प्रे करना चाहिए। तो प्रहलाद को जब उन्होंने मारा तो इट इज़ नथिंग बट इट सिग्निफाइज दैट लस्ट इन आवर हार्ट। प्रहलाद एक सिग्निफाई करता है लस्ट एंड ड्यूप्लिसिटी। ओके, तो जानना चाहेंगे प्रहलाद को उन्हें क्यों मारा? इसके पीछे भी कहानी है। ओके, भी घर के पुराण में आती है कि एक गंधर्व थे, इसका मतलब हुहु गंधर्व। क्या था? हुहु गंधर्व। ओके, गंधर्व मतलब वो लोग रहते हैं जो दे सिंग वेरी नाइसली, दे आर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवलर्स, अलग अलग प्लैनेट ट्रैवल करते हैं, और जो देवता लोग रहते हैं वो लोग उन्हें इन्वाइट करते हैं क्या बोलते हैं, नृत्य करने के लिए, गाना सिंग करने के लिए। और तो ये हुहु गंधर्व का एक, इसका नाम था विजय। ओके, तो ये जब ये अच्छे से मतलब सिंगिंग करके आ रहे थे, और उस टाइम में कुबेर को आप जानते हैं? कुबेर शिव जी के भक्त हैं। तो कुबेर क्या करते थे, उनका अलग से एक वन था। ओके, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते थे, और जो विजय गंधर्व है ये विष्णु भगवान के भक्त थे। तो विष्णु भगवान के लिए कोई अच्छे से वो कुछ भजन करके आ रहे थे, तो कुबेर जो है जब भी वो शिव जी को फ्लावर्स चढ़ाते हैं तो उस वन से वो फ्लावर्स लेते थे। ओके, तो उन्होंने बस एक ही चीज़ किया, उन्होंने उस वन को प्रोटेक्ट, फेंसिंग कुछ लगाया नहीं, उन्होंने उसके ऊपर एक श्राप दे दिया, जो भी इस वन से फूल उठाएगा वो एक असुर बन जाएगा। तो डर से कोई वहाँ जाता ही नहीं था। उन्हें कुबेर जी खुद आते थे, शिव जी के लिए फूल लेके उनको वो ऑफर करते थे। तो अभी ये उसी रास्ते से जा रहे थे विजय हुहु गंधर्व। तो जब गए वहाँ पर तो देखा कि बहुत अच्छे अच्छे सुगंधित फ्लावर्स हैं, तो विष्णु भगवान के लिए फ्लावर उठाए। जैसे फ्लावर उठाए उनका बॉडी चेंज हो गया, असुर बन गए, प्रलंबासुर। दिस इज हाउ ही बिकेम प्रलंबासुर। एंड जब कुबेर ने देखा अरे तो विष्णु का भक्त है, विष्णु भगवान के फ्लावर लेके जा रहा है, और अभी श्राप तो लग गया इसके ऊपर, सो लेट मी काउंटरैक्ट द श्राप। तो उसको क्या किया कि ठीक है, आप जब वृंदावन में जाएंगे एट दैट टाइम बलराम जी आपका उद्धार करेंगे। दिस हाउ प्रलंबासुर को बलराम जी ने उद्धार किया। समझ में आ रहा है? सो दिस प्रलंबासुर ये रिप्रेजेंट ड्यूप्लिसिटी। ड्यूप्लिसिटी मतलब क्या? दोगलापन। सामने अच्छे से हरे कृष्णा प्रभु, हाँ मैं अच्छा हूँ, हाँ मैं जब करता हूँ कुछ करता हूँ, अंदर पूरा खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है, कुछ कंटेंट अंदर नहीं है, बस बाहर से दिखाने के लिए।
दैट इज द प्रलंबासुर डिड। बाहर से आके एकदम अच्छे से कृष्ण का दोस्त बन के आया, अंदर क्या था, कृष्ण को मारने का, बलराम जी को मारने का प्लान बना रहा था। तो ये दोगलापन, ओके, लस्ट के पहले दोगलापन आता है। लस्ट है बहुत कुछ चीज़ प्रॉमिस करता है, बस अभी कर लो सब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, एक बार बस कर लेना यार, कुछ बाद में कुछ नहीं होगा, बोलता है कि नहीं माइंड? बहुत बहुत अटैक कर रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ माइंड बोलता है और प्रपोज देता है, बस एक बार कर ले फिर नहीं करेंगे, ओके सब चला जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, आता है कि नहीं माइंड में? और आप एक बार कुछ गलत चीज़ कर लेते हैं, बस एक बार बस स्मोकिंग कर ले, बस एक्सपीरियंस लेने के लिए, और कुछ एक्सपीरियंस लेंगे, बस एक्सपीरियंस लेते लेते चेन स्मोकर बन गया, एक्सपीरियंस स्मोकर बन गया। हाँ, समझ रहे? दिस ऑल लस्ट विल अटैक यू। तो ये कैसे होता है, मतलब यू नो, जब आप आग में घी डालते तो क्या होता है, व्हेन यू पोर घी इनटू द फायर, पहले आग थोड़ा कम हो जाता है, फिर एकदम करके जोर से एकदम आता है, समझ रहे? वैसे काम करता है। एक बार कर ले, बस एक बार कर लिया, फिर थोड़ा टेम्पोररी टाइम बिंग के लिए यू फील सेटिस्फाइड, उसके बाद पूरा पोटेंशियल अटैक करेगा, पावरफुल अटैक करेगा, वेरी पावरफुल अटैक। दैट इज हाउ लस्ट विल अटैक यू लाइक अ फायर। पर थोड़ा सा कम होगा, फिर बहुत जोर से पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज द प्रलंबासुर। एंड सेकेंड थिंग व्हाट प्रलंबासुर सिग्निफाइज इज प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा एंड प्रतिष्ठा, नेम, फेम, प्रेस्टीज। वो लस्ट के वजह से हमें आता है। तो इसके वजह से क्या कि हम हमारे माइंड को फोकस नहीं कर पाते। माइंड क्या करते हैं, छोटे प्रॉब्लम पर फोकस कर देता है। समझे आपके शरीर में कुछ एक पार्ट में थोड़ा दर्द हो रहा है, माइंड उस दर्द पे इतना फोकस करके उसको इतना बड़ा बना देगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे को सोना पड़ेगा आज, मेरे से नहीं होगा प्रभु जी, ये हो गया वो हो गया। एक छोटा दर्द के वजह से माइंड उसको कितना बड़ा फोकस कर रहा है। दिस इज हाउ आवर माइंड चीट्स अस। सोल्यूशन क्या जानना चाहेंगे? डुप्लिसिटी का सोल्यूशन। सोल्यूशन इज दैट वी हैव टू सर्व गुरु एंड कृष्णा बाय फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस। अगर आप गुरु कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो विल डेफिनेटली फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ माया। और कोई चीज़ नहीं दुनिया में, कृष्णा और माया। अगर समझिए आपको 4 माला जप करने के लिए आधा घंटा समय लग रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप 4 माला जप कर भगवान को याद करो, पर अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो वो टाइम कहाँ पर यूज़ करेंगे? पढ़ाई में यूज़ करेंगे, मोबाइल में यूज़ करेंगे, किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे, पर पढ़ाई नहीं करेंगे। समझ रहे? दिस इज हाउ माइंड चीट्स अस। डुप्लिसिटी, कैसे लस्ट हमको चीट करता है। दैट्स व्हाई दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरु कृष्ण के कृपा के द्वारा ही हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएंगे। ये इस हॉस्पिटल का सीक्रेट है। ओके, तो अगर आपको आगे बढ़ना है, खुद को एक सेल्फ कंट्रोल इंसान बनाना है, लाइफ में लीड करना है, इज्जत की ज़िंदगी जीनी है, नहीं तो फैमिली में भी इज्जत नहीं मिलता, पता है आपको? इवन योर वाइफ विल नॉट रेस्पेक्ट यू। समझ रहे हैं? आपकी पत्नी भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगी अगर आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो। पत्नी का भी शरीर है ना, लेडीज का भी शरीर है। अभी आपको सर्दी हुआ है, आपको बॉडी पेन हो रहा है, और जो लोग फीवर से लेटा हुआ है, कितना प्रॉब्लम बॉडी में है। उन लोग का प्रॉब्लम रहता है बॉडी में, सेम बॉडी है ना, क्या कुछ अलग है क्या? उनका भी शरीर है, उनको प्रॉब्लम, उनको पता है कि बॉडी इतना खराब है, इतना प्रॉब्लम दे रहा है। एंड दिस पर्सन is attracted to this body. This man is attracted to this third class body, जो इतना शरीर है, मतलब ये मैन कितना थर्ड क्लास आदमी रहेगा ये, जो मेरे पे इतना अट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं तो उसको मेरे जूती पे नचाऊंगी। समझ रहे हैं? इज्जत नहीं मिलेगा, वाइफ भी इज्जत नहीं करेगी घर में। आपने देखा ही होगा, जितने भी हस्बैंड्स है वाइफ के सामने झुक के एकदम गिड़गिड़ा के रहते हैं। वेरी फ्यू हस्बैंड्स आर देयर जो वाइफ उनको रेस्पेक्ट करती है। मैं सब हस्बैंड वाइफ के सामने जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। गोविंदा का एक पिक्चर का गाना है ना। क्यों? ट्रेनिंग लिया नहीं ना, सेल्फ कंट्रोल सीखा नहीं, लस्ट के प्रति अट्रैक्टेड हो गए। और वुमेन को पता है थर्ड क्लास शरीर के ऊपर थर्ड क्लास से गिरा हुआ आदमी है, इसको क्या रेस्पेक्ट दूंगी, इसको मैं कंट्रोल करूंगी। समझ रहे? तो इज्जत ही नहीं मिलेगी लाइफ में। इफ यू वांट टू लिव अ रेस्पेक्टेबल लाइफ इन सोसाइटी एंड इवन इन अ फैमिली लाइफ, देन यू शुड गेट दिस ट्रेनिंग वेरी सीरियसली।
खुद को कंट्रोल करना सीखिए, सेल्फ कंट्रोल। जब तक खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? ओके, फॉर दैट वी नीड टू जस्ट प्रे हम्बली टू लॉर्ड बलराम। बलराम जी भी आ रहे हैं, उनसे अच्छे से प्रे कीजिएगा, बैग एंड प्रे। जब भी आप वॉइस में आते हैं प्रणाम कीजिए भगवान को, प्रभुपाद जी को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, ऑलवेज प्रे एंड देन यू स्टार्ट योर डे। चैंट अराउंड सिंसियरली, रीड भगवद गीता, इसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है? एंड देन Allah will definitely give you strength. Okay, so thank you very much. I took 10 minutes extra, but I think you got to learn something valuable. तो मैंने आपको आज हृदय दौर्बल्य के बारे में बोला, 2 कहानियाँ बताई कृष्णा बुक से, और कैसे उसको ओवरकम करना है बलराम जी के बारे में बताया। ओके, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा, इसको आप फोकस कीजिए लाइफ में, और सेल्फ कंट्रोल इंसान बन के आप जाइए। आप ही लोग अभी यू आर द फ्यू पीपल इंटेलिजेंट सोल्स हु आर ट्राइंग टू समहाउ सहन करके भी ट्रेनिंग को थोड़ा कर लेंगे। दिक्कत है पर क्या करेंगे, अभी थोड़ा कर लेंगे। सुबह सुबह राहुल भैया के दरवाजा नॉक करते हैं, उठ जाओ थोड़ा, आ जाओ क्लास के लिए, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा सहन कर लेंगे। बस यही करना है, थोड़ा सहन करके खुद को ट्रेन कर लो, लाइफ लॉन्ग इज्जत का लाइफ जियोगे। पीरियड्स में देखा है ना, 4 साल अगर नहीं करेगा तो बाकी का 40 साल उसका क्या होगा, वही होगा, समझ रहे? इसलिए 4 साल खुद को अच्छे से ट्रेन कर लीजिए। लाइफ लॉन्ग यू विल बिकम अ गुड डिवोटी, पीपल विल फॉलो यू, दे विल लिसन टू यू, यू हैव रेस्पेक्टेबल लाइफ एंड यू विल, कृष्णा विल लव यू फॉर गिविंग सच गुड वैल्यूज टू अदर्स। ठीक है, हरे कृष्णा। If you have any questions, any comments, any doubts, you can ask. बलराम जी अस्तित्व को जला देना है, जो लोग का माफ नहीं किए उनको माफ भी तो कर सकते थे, ना भी तो सारे प्यारे लोग हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, गुस्से के बाद में दैट इज अ सेटिंग एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगली बार से सब लोग प्रणाम करना है, सीनियर्स को प्रणाम करना है। माफ कर दिया तो क्या अगले बार फिर से माफी मिल ही जाएगी? देखिए, हाँ करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। क्या बोल रहे कि भगवान तो माफ भी कर सकते हैं, माफ क्यों नहीं किया, है ना? मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, भगवान बहुत दयालु है, वो हर टाइम माफ करते हैं। ओके, एवरी टाइम ही फॉरगिव्स। हम लोग फॉरगिव नहीं करते। इसके वजह से क्या होता है, वी टेक गॉड चीपली, भगवान को हम सस्ता में ले लेते हैं, समझ रहे हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए अगर आप 5 मिनट लेट हो जाएंगे ना, दैट्स ऑल, इट्स गॉन। इंटरव्यू वो माफ नहीं करेंगे आपको। कैंडिडेट लेट आए, वी डोंट वांट द कैंडिडेट, ही इज नॉट पंक्चुअल, पहला पंक्चुअलिटी में वीक है, रिजेक्ट हिम, माफ नहीं किया। अब मंदिर में लेट आएंगे, भगवान ने कुछ किया आपको, माफ किया ना? तो भगवान इज द क्रिएटर ऑफ एवरीबॉडी, इज द कंट्रोल, इज ऑल पावरफुल। क्या उन्होंने कुछ किया आपके साथ? माफ कर दिया, मेरा बेटा है, ठीक है माफ कर दो, मेरे बेटे जैसा ही माफ कर दो। तो भगवान इज वेरी वेरी कंपैशनेट, और इसके वजह से द होल इंडिया टेक्स गॉड वेरी चीपली। माफ तो कर ही देंगे, क्या है, प्रणाम करना है, क्या है, बाइक पे जा रहे हैं, मंदिर साइड से गया, सैल्यूट मार के गया, ये सैल्यूट के प्रणाम है क्या? हाँ, यहाँ तक आ गए लोग, अभी जाके प्रणाम करो मंदिर में, प्रणाम नहीं करेंगे, सैल्यूट मार के जाएंगे भगवान। मैं वो देखता हूँ, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं, एवरी फ्राइडे दे गो एंड दे रीड नमाज सिंसियरली, बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है, नमाज पढ़ेंगे जाके। क्रिश्चियंस एवरी संडे चर्च में जाके दे विल अटेंड देयर वॉट एवर इज देयर, अटेंड इट। हम लोग हफ्ते में क्या मंदिर जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो क्यों? हमारे भगवान बहुत कंपैशनेट है, माफ़ कर देंगे। भगवान को चीपली ले लिया, मंदिर नहीं जाते हैं। You're coming here, this is a like temple only, इस टेम्पल ओनली, भगवान का जगह है ये। सब खुद से आपको आना चाहिए। भगवान के पास जा रहा हूँ, कुछ सीखूंगा वहाँ पर, कुछ करने को मिलेगा, कुछ सेवा मिलेगा, समझ रहे हैं ना? तो हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती है। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन, डाउट्स? ओके, देन हैंड ओवर हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो जो प्रसादम टीम जो थी लास्ट टाइम